سیزن کی شروعات میں ہمیں ایک بہادر سپاہی لنگ دکھایا جاتا ہے جس کی بہادری کے چرچے ہر جگہ مشہور ہیں۔ پھر سینز چلبلی اور خوبصورت فیمیل لیڈ شینگ پہ شفٹ ہوتے ہیں جسے اس کی میٹس بڑی مشکل سے ویلٹ سے نکال کے واپس پیلس لے جانے کی کوشش میں لگی تھیں۔ میٹ شینگ کے من پسند کھانے کے بہانے سے اسے بلواتی ہے اور مجبوراً شینگ کو کیریج میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ شینگ پیلس کی فورتھ لیڈی ہے جس بیچاری کا سارا بچپن اپنے ماتا پتا کے بغیر اکیلے ہی گزرا ہے۔ اس کے ڈیڈ شی اور اسٹیپ مام یوان 10 سال پہلے ہی مختلف جنگوں کے لیے نکل گئے تھے، جس کے بعد شینگ کی دادی اولڈ میڈم اور آنٹ گی نے اس کا جینا بہت حرام کیا۔ اب لنگ شینگ کا کیریج دور سے دیکھ کے اس کی تلاشی لینے آتا ہے مگر میر اس کو اندر جھانکنے نہیں دیتی۔ شینگ اپنا ہاتھ باہر نکال کے ایک گھاس کی ڈھیر کے اور اشارہ کر کے اسے جلانے کا کہتی ہے۔ لنگ کے ادھر آگ لگواتے ہی اس میں سے ایک آدمی ڈونگ نکلتا ہے جسے سپاہی ڈھونڈ رہے تھے جو اولڈ میڈم کا بھائی ہے۔ شینگ کے مطابق وہ برسوں پہلے بہت سارے سپاہیوں کے قتل سے جڑا ہوا ہے۔ اس کو بھاگتا دیکھ کے لنگ اسے گرفتار کر لیتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں اولڈ میڈم اور جی پیلس میں دکھائے جاتے ہیں جن کو شینگ سے بہت نفرت ہے۔ میڈ آ کر اولڈ میڈم کو شی کے آنے کا بتاتی ہے۔ اولڈ میڈم ڈرامہ کرتے ہوئے برسوں سے بچھڑے بیٹے سے روتے ہوئے ملنے آتی ہے اور آنسوں کی ٹینکی بہانے لگتی ہیں۔ شینگ کا کیریج پیلس پہنچ جاتا ہے۔ میڈ بتاتی ہے کہ شینگ نے ڈونگ کو پکڑوا دیا۔ اولڈ میڈم کی ہوائیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ شور سن کے شی اور یوان بھی باہر آ جاتے ہیں جنہیں دیکھ کے شینگ جذباتی ہو جاتی ہے۔ پھر شینگ بے ہوش ہونے کا ناٹک کرتی ہے جس میں اس کی نوکرانی فائنگ بھی ساتھ دیتی ہے۔ شی فوراً اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا لیتا ہے۔ وہ ایسا اس لیے کرتی تاکہ سب اس کا خیال رکھیں کیونکہ وہ کیئر اور محبت کی ترسی ہوئی تھی۔ لنگ کا رتبہ اور غصہ دونوں ہی ہائی ہوتا ہے۔ وہ جنرل شی سے ملنے آتا ہے اور اس کو غدار کے پکڑے جانے کا بتاتا ہے۔ شی کو غصہ آتا ہے مگر اس آدمی کو دیکھ کے اسے جھٹکا لگتا ہے کیونکہ وہ اس کا اپنا انکل ڈونگ تھا۔ شی بولتا ہے کہ شاید یہ غلط فہمی ہے مگر لنگ کہتا ہے کہ وہ اس کیس پہ چھان بین کر کے سچ کا پتہ ضرور لگائے گا۔ جاتے ہوئے لنگ شینگ کو ان کی باتیں چھپ کے سنتا دیکھ کے اس کی ہمت کی داد دیتا ہے کیونکہ اس نے ڈونگ کو پکڑوایا۔ پیلس میں ڈونگ کی گرفتاری ہلچل مچا دیتی ہے۔ شی ڈونگ کو پکڑوانے والی بچکانی حرکت پہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ایسے ان کی بدنامی ہوگی، تو یوان کہتی ہے اگر ڈونگ دیش دروہی ثابت ہو جاتا ہے تو ان کی بدنامی نہیں ہوگی، نہ ہی ان پہ سوال اٹھیں گے۔ اب یوان کا کام شینگ کا بچپنا ختم کر کے اسے سدھارنا ہے۔ وہ جان بوجھ کے شینگ کو کڑوی دوا دلواتی ہے جو اس کو شی اور یوان کے سامنے مجبوراً پینی پڑتی ہے۔ شی کو اپنی بیٹی پہ بڑا ترس آتا ہے مگر یوان اس کا ڈرامہ سمجھ چکی تھی۔ لنگ کے 2 اور سولجر دوست کیو اور فے ہوتے ہیں۔ کیو ڈونگ کو لنگ کے پاس لے کر آنے لگتا ہے۔ جیل میں خون سے لت پت لوگوں کو دیکھ کے ڈونگ کی سیٹی بیٹی گل ہو جاتی ہے۔ وہ لنگ کے سامنے سب سچ بتانے اور منہ کھولنے پہ راضی ہو جاتا ہے کہ وہ بس ایک گمنام آدمی کے لیے ہتھیار ادھر ادھر کر کے پیسے لیتا تھا مگر سپاہیوں کی موت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ پر ابھی بھی لنگ کو اسٹوری میں کچھ ادھورا لگتا ہے۔ اولڈ میڈم کا رونا دیکھ کے شی کہتا ہے کہ وہ ڈونگ کو بچا لے گا لیکن اگر وہ سچ میں غدار نکلا تو شید کی طاقت کسی کام کی نہیں۔ ادھر ڈونگ کی وائف آ جاتی ہے جو انتہائی چلاک عورت ہے۔ وہ اولڈ میڈم سے بولتی ہے کیوں نہ شی ڈونگ کا الزام اپنے سر لے لے۔ سب اس کی بات سے چونک جاتے ہیں۔ اولڈ میڈم اس کو تھپڑ مارتے پیلس سے نکال دیتی ہے۔ اولڈ میڈم کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے شی ان سے ابھی تک جوان ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کا بولتا ہے۔ اپنی ماں کو بڑھاپے میں دوسری شادی کا مشورہ دیتا سن کے اولڈ میڈم شی کو چھڑی سے کوٹ کے رکھ دیتی ہیں۔ کیو اور فے لنگ کو ایک اسکیچ دکھاتے بتاتے ہیں کہ ڈونگ کو اس آدمی نے کام کے لیے خریدا تھا جس کے بعد وہ مزید کھوج میں لگ جاتے ہیں۔ اب کیونکہ ڈونگ کے بارے میں پوری بات پتہ لگنے سے پہلے اس کو کڑک سزا بھی نہیں ہو سکتی، تبھی لنگ کو شینگ یاد آ جاتی ہے جس نے اپنے رشتہ دار کو ہی قانون کے حوالے کروایا۔ لنگ شینگ کو شکریہ ادا کرنے کا سوچتا ہے کیونکہ شینگ چھپ کے لنگ کو کلوز بھیجتی ہے۔ اسی کے کلوز کا پتہ چل پایا تھا کہ ڈونگ پیسوں کی ہیرا پھیری میں ماہر تھا۔ پیلس میں میٹنگ ہوتی ہے جس میں شینگ کے دیر سے آنے پر جی اس پہ غصہ کرتی ہے۔ شینگ بھی منہ بند نہیں رکھتی اور سچ بتا دیتی ہے کہ شی اور یوان کے پیچھے جی اور اولڈ میڈم نے کبھی اس کو میٹنگ میں آنے ہی نہیں دیا اور ہمیشہ یہی بولا کہ ایک عورت کے لیے پڑھائی سے زیادہ اپنے شوہر کو خوش رکھنا اہمیت رکھتا ہے۔ یوان اور شی چونک جاتے ہیں کیونکہ شینگ ایسے ہی کم عقل نہیں، اس کو ان سب چیزوں سے دور رکھا گیا ہے۔ ادھر جی کی اچھی بیٹی ین کی انٹری ہوتی ہے جس کی تمیز دیکھ کے سب خوش ہوتے ہیں۔ جی بس اس کی تعریفوں کی داستان سنانے لگتی ہے۔ ڈونگ ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنے سب سے ملنے آتا ہے مگر شینگ کو دیکھ کے غصے سے اس کو مارنے آگے بڑھتا
करता है, जिस पर शी टांग अड़ा के डोंग को गिरा देता है। डोंग ओल्ड मैडम और जी के पोल खोलते हुए सबक देता है कि इन दोनों ने शेंग को जाहिल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अकेले विलेज भी भेज दिया ताकि ये आगे रहे। ओल्ड मैडम की हलक सूख जाती है, मगर वो सब जी पे डाल के उसको दिखावे में पैलेस छोड़ने का कहती है, जिसका गुस्सा जी अपने हस्बैंड चा पे पीट के निकालती है, क्योंकि कहने को तो वो चा ओल्ड मैडम का बड़ा बेटा है, मगर इज्जत ज्यादा दूसरे भाइयों की है। जी चा को माजूर बोलती है, जो ये इनको तड़पा देता है। पैलेस से ना जाने के लिए शेंग जी को एक आइडिया देती है कि वो सबके सामने बोले कि जब तक उसके घर बेटा पैदा नहीं हो जाता वो उधर से नहीं जाएगी, जिस पे ओल्ड मैडम भी मान जाती हैं। अब शी को मैजेस्टी वॉर में बेहतरीन कारकर्दगी पे इनामात देने बुलाता है। उसको बहुत इज्जत के साथ साथ एक बेहतरीन नए पैलेस से नवाजा जाता है। सब फख्र से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि शी एक बहादुर जनरल और सीना होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान है। जी जल के राख हो जाती है, मगर जब सब नए पैलेस में शिफ्ट होने की बातें करते हैं तो उसके मन में लड्डू फूट जाते हैं, जिस पे शेंग याद दिलवाती है कि जी तो बेटा हो जाने तक ओल्ड पैलेस में ही रहेगी ना। शेंग के शैतानी दिमाग पे जी ढंग रह जाती है, जिसने उसे बेटा जन्म देने वाली बात पे अच्छे से बेवकूफ बना दिया। जी अकेले में शेंग को सुनाती है, मगर वो अपनी मस्ती में होती है। युआन को चुप के बातें सुनता देख के शेंग जानबूझ के जी से चा पे जुल्म करने वाली बात उगलवाती है। उसके बाद जब जी चा को पीट रही होती है तो चा की बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो जी से डिवोर्स का कहता है। जी मजीद भड़क कर अपनी फैमिली के एहसान गिनवाने लगती है। युआन वहाँ आकर जी को जोरदार थप्पड़ लगाते हुए हद में रहने का कहती है और अपना पुराना पछतावा याद दिलाती है। फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि जी और ओल्ड मैडम की वजह से युआन शेंग से बिछड़ के वॉर पे शी के साथ चली गई थी और अपने दोनों बेटों को साथ लेकर शेंग को जी के सहारे छोड़ गई थी, जिसका पछतावा आज भी उसको है। अब प्रेजेंट में युआन जी को उनकी जिंदगियों में मजीद जहर घोलता नहीं देख सकती थी, तभी वो उसे जान छुड़वाने के लिए जी फैमिली को उसके करतूतों का खत भिजवा देती है। लिंक को एक दुकान में वही स्केच वाला आदमी छुपा हुआ मिलता है, जिसका पता सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से लगाया था, मगर गुस्से के बादशाह लिंक को अपने करीब आता देख के वो झट से जहर खा लेता है और कुछ उगले बगैर ही मर जाता है। लिंक की मेहनत पे भी पानी फिर जाता है, क्योंकि उसी ने शायद आगे जानकारी और सच का पता देना था। उसके गर्दन पे एक बर्थ मार्क देख के लिंक को अपने बचपन का वो वक्त याद आता है जहाँ हर जगह तबाही तबाही मची हुई थी और उसी के जैसे निशान वाले एक आदमी ने हथकड़ियों की सप्लाई की थी। लिंक क्यों और फे की मदद से मजीद सबूत इकट्ठे करने लगता है। जी फैमिली पैलेस आ जाती है, सब लोग उनका अच्छे से इस्तकबाल करते हैं, मगर वो अपनी बेटी जी की साजिशों की वजह से बहुत शर्मिंदा होते हैं और ओल्ड मैडम और सबके सामने माफी के लिए झुकने लगते हैं। शी उनको रोक लेता है और माजरत करता है। जी अपने डैड के सामने अड़ी हुई होती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, जिस पे उसको जोरदार थप्पड़ लगता है और डैड उसकी डिवोर्स के पेपर्स बनने का हुक्म देकर जी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। चाबी पढ़ाई के चक्कर में दूर पहाड़ों पे निकल जाता है। अपनी फैमिली को झट से टूटता और बिखरता देख के यिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर उसकी नानी उसको वहीं पैलेस में ठहरने का कहती है। शेंग नानी के सामने खाना करती है तो वो शेंग से बहुत खुश होती है। सबको जाता देख के यिन उदास हो जाती है, लेकिन युआन उसको कंसोल करके अपने बच्चों की तरह पालने का कहती है। युआन रोज रोज की बचकाना और लापरवाह हरकतें देख के शेंग को डांटते हुए सुधरने का बोलती है। शेंग की नजर में युआन शैतान होती है, तभी वो युआन से बोलती है कि वो कभी यिन जैसी तमीजदार नहीं बन सकती। युआन कहती है कि उसने सिपाहियों तक को सीधा कर दिया तो शेंग किस खेत की मूली है। युआन जबरदस्ती शेंग से बहुत सारी किताबें पढ़ पढ़ के लिखने का कहती है। पैलेस के सारे लोग नए पैलेस जाने की तैयारियां करने लगते हैं। उधर पहुंचने के बाद ओल्ड मैडम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता, क्योंकि वो बहुत आलीशान और बड़ा था। सब बातें करने लगते हैं, मगर शेंग नींद में टुन होती है, लेकिन वो ना तो अपनी नींद खोना चाहती थी और ना ही बातों को मिस करना चाहती थी। तो शेंग अपने स्टाइल में दोनों चीजों को अंजाम देती है। फिर सब अंदर जाते हैं और शेंग उबासी लेते हुए जमीन पे ही सोने लेट जाती है। शी उसको देख के हंसता है, मगर युआन गुस्सा हो जाती है। युआन उसको डांटने लगती है तो शी शेंग को बहाने से वहाँ से भेज देता है और खुद युआन के हाथों में फंस जाता है कि शी बिगड़ी शेंग को तमीज सिखाने नहीं देता। शेंग नए पैलेस को सुबह में मटक मटक के एक्सप्लोर करती है। फाइंग के साथ इसकी नजर एक लकड़ी पे पड़ती है, जिसपे वो अपनी कारकर्दगी दिखाने लगती है, क्योंकि शेंग को दूसरी लड़कियों की तरह मासूमियत और गुड़ियों का शौक नहीं, बल्कि उसको ये सब पसंद है। ठोका पीटे की आवाज जब शी को आती है तो वो युआन से उस आवाज का पूछता है। युआन कहती है कि जरूर शेंग थोड़पोड़ में लगी होगी। युआन
युआन बाहर आती है तो शेंग का हुनर देख के इम्प्रेस होती है, मगर उसके सामने जाहिर नहीं करती और सुना के चली जाती है। पैलेस में अब एंट्री होती है ओल्ड मैडम के सबसे छोटे और लाडले बेटे जी की और उसकी वाइफ सोहोन की, जो काफी अरसे बाद घर लौटे हैं। ओल्ड मैडम अपने बेटे को देख के इंतहाई खुश होकर वैसे ही ड्रामा करने लगती है, मगर सोहोन ने अपनी पसंद से शादी करने के चक्कर में ओल्ड मैडम उसको पसंद नहीं करती। इनके साथ ही युआन और शीको दोनों बेटे भी आ जाते हैं, जो आर्मी में होने की वजह से दूर थे। पहले तो शेंग अपने भाइयों को नहीं पहचानती, मगर फिर जान पहचान पे तीनों बहन भाई बेहद खुश होते हैं और अच्छे से मिलने लगते हैं। रात में पैलेस के बाहर पार्टी में सब एंजॉय कर रहे होते हैं। शेंग अपने बड़े भाई सॉन्ग और छोटे भाई जैंग के साथ हंसती मुस्कुराती फायरवर्क्स देखने जा रही होती है, मगर बीच में वो युआन को सोहोन से शेंग की बुराइयां करता देख के बुझ सी जाती है और उधर से चली जाती है। युआन सोहोन को बता ही रही थी कि शेंग बच्चों वाला जहन रखती है और बहुत शरारती है, जिस वजह से वो बिल्कुल निकम्मी है। दोनों भाई अपनी बहन की उदासी देख के फिक्रमंद हो जाते हैं। शेंग का मूड अच्छा करने के लिए सॉन्ग और जैंग उसको खूब सारे तोहफे देने का सोचते हैं, जो वो अपने सफर से शेंग के लिए लाए हैं। सीन शिफ्ट होता है मैजेस्टी के घर पे, जिधर एक अच्छी दावत चल रही होती है, जिसमें उसकी दूसरी वाइफ और बाकी लोग भी मौजूद होते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है लिंग की। यहाँ हमें पता लगता है कि लिंग फौज का हाई ऑफिसर होने के साथ साथ मैजेस्टी का बेटा भी है। मैजेस्टी लिंग को खाना खाने का बोलते हैं, मगर वो उधर बस मैजेस्टी पे गुस्सा करने आया था, क्योंकि मैजेस्टी उसकी शादी उधर मौजूद एक प्यारी सी लड़की यूचान से करवाना चाहता था, जिसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं। मगर यूचान लिंग के प्यार में पागल होती है, तभी उसको घूर घूर के ताड़ती रहती है। लिंग वहाँ से चला जाता है। लिंग को केस का एक और सबूत मिलता है, जिसमें उसको लैंटर्न मिलते हैं, जिसपे जहर खा के मर जाने वाले आदमी जाओ कुछ लिख के लैंटर्न फेस्टिवल में छोड़ा करता था, मानो उसके पीछे कोई गुप्त पैगाम पहुँचाना हो। लिंग उसकी जांच करने के लिए लैंटर्न फेस्टिवल जाने का फैसला लेता है। उधर यूचान आके उसके साथ चलने की जिद करने लगती है, मगर लिंग उसको भाव नहीं देता। शेंग को जैंग और सॉन्ग तोहफे देते हैं तो वो खुश हो जाती है। बाहर जी की नौकरानियों को उसकी खुशी हजम नहीं होती, क्योंकि जी की कमी अब उसकी बुरी नौकरानियों ने झगड़े करवा कर पूरी करनी थी। वो फजूल में फाइंग के साथ लड़ाई करके ऐसा दिखावा करती हैं कि वो यन को नीचा दिखा रही थी, जबकि ऐसा नहीं था। युआन उधर भी शेंग को जिम्मेदार समझ के उस पे भड़क जाती है, मगर इस पर शेंग युआन को खड़ा जवाब देती है कि उसको बस ये नहीं पसंद है तो शेंग का पीछा छोड़ दे। ये सुन के तो युआन का गुस्सा आसमान पे पहुंच जाता है। वो शेंग को सजा देने आगे बढ़ती है, मगर येन जैंग और सॉन्ग उसके बीच दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। अब युआन के आगे किसी की तो चलती नहीं। तभी सब कहते हैं कि अगर शेंग को सजा मिली तो वो भी सजा को भुगतेंगे। सोहोन युआन को शांत करवाने के लिए पेट दर्द का बहाना बना के गुस्से वाली युआन को अपने साथ ले जाती है। सोहोन युआन से कहती है कि वो शेंग पे कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत रही है, जबकि वो अभी भी छोटी और जवान है। सोहोन किसी तरह युआन और मामले को संभाल लेती है। फिर सोहोन प्यार से सारे बच्चों को सजा के खौफ से मुक्त कर देती है, जो अभी तक युआन से माफी के चक्कर में झुके हुए थे। सोहोन शेंग को कहती है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो सोहोन को बताए, जिस पे शेंग मौके का फायदा उठाते हुए उससे लैंटर्न फेस्टिवल में जाने की इजाजत मांगती है, जो उसे युआन ने भी नहीं दी थी। सोहोन हाँ कर देती है तो शेंग और बाकी सब खुशी से उछलने लगते हैं। अब ये तो वही फेस्टिवल है जहाँ लिंग भी आने वाला है, तो क्या उधर फाइनली लिंग और शेंग की मुलाकात हो पाएगी और क्या इनके रास्तों के साथ साथ दिल भी टकराएंगे, ये हमें अगले पार्ट में ही पता लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।